Hello students, how are you all? I hope you all are good. So here today we are going to start your class 4 EVS chapter 4, a story of Amrita revision. Okay, already we have learned this chapter but today we will revise whole chapter. पूरा chapter एक बार revise करेंगे और chapter के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी रिवाइज करेंगे. So please concentrate properly and let's start a story of Amrita. But first of all, I want to say something. Before going to start this chapter, we will learn about importance of the trees. Okay, trees की importance हम लोग देखेंगे कि trees क्यों important है because this chapter depends on trees. Okay, जो tree है वो tree से कितना लोग प्यार करते हैं, कितना caring करते हैं, तो that's why we have to do also. So first of all, importance of trees. Okay, so let's start one small story about the trees. Introduction. Here this girl saw her grandmother and mother worshipping some plants like neem tree. When asked for the reason, they explained to this girl. Let's what they explain. In this chapter, we will talk about trees and plant because trees and plant are very important for us. So let's see about objectives. It means at the end of chapter what we learn. Here at the end of this lesson you will be able to learn your first discuss the names of common trees. आप common trees के names discuss कर पाओगे. Understand the importance of trees in our lives. हमारी life में trees की क्या important है वो. Explain deforestation and afforestation. और आप deforestation और afforestation के बारे में पढ़ पाओगे. So here start trees around us. So trees are living beings that play an important role in our lives. These are homes of many birds and animals. Humans cannot survive without plants and animals as we depend on them for food and livelihoods. Some trees are short and thick, some are tall and thin, some trees flower and bear fruits in a particular season, some shade their leaves, some remain evergreen throughout the year. How are trees useful to us? Trees provide us food and shelter. They prevent soil erosion. They purify the air we breathe in. They beautify our surroundings. Trees play a major role in controlling global warming. Deforestation and afforestation. Deforestation is rapidly loss of forest by cutting plants regularly without replanting. और जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ओके तो ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे हैं ट्रीज़ को कट कर रहे हैं फॉरेस्ट के ट्रीज़ को कट कर रहे हैं एंड एस्टेब्लिश वेल डेवलप्ड सिटीज़ और वो नई नई सिटीज़ बनाने के लिए और कई सारे फार्म्स बनाने के लिए ट्रीज़ को कट करते हैं और लैंड फॉर हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के लिए लैंड का यूज़ करते हैं. सो दिस लीड्स फॉरेस्ट फायर. तो ये सब क्या है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का मतलब फॉरेस्ट फायर क्यों होता है बिकॉज वी आर कटिंग द ट्रीज़
and mining also. Okay, it means that very dangerous for us. Of forestation is the process of planting trees in a barren land devoid of any trees to create a forest. Here we'll see difference between reforestation and afforestation. इन दोनों के बीच में क्या difference है? So, reforestation is the process of replanting forest areas that have been destroyed for the benefit of mankind. Afforest is the creation of a new forest. So, these are difference. Here you can see some trees are there जिनकी वर्शिप मतलब पूजा होती है. तो ऐसे ट्रीज़ हैं इंडिया में जिनकी पूजा होती है, लोग उनकी पूजा करते हैं. नीम ट्री, पीपल ट्री, banyan tree. Okay. This chapter 4 the story of Amrita. Okay, in this chapter जो अमृता की स्टोरी है वो ये है कि this happened almost 300 years ago in a village called खेजड़ी. ओके, जो खेजड़ी नाम का एक विलेज है राजस्थान में, ये वहाँ की स्टोरी है और अमृता की स्टोरी है. ओके, दिस विलेज इज़ इन राजस्थान. ओके, इन दिस मैप यू कैन सी राजस्थान में ये खेजड़ी नाम का विलेज है. सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी. दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो. ये स्टोरी बहुत पहले की है. जोधपुर इज़ लोकेटेड इन राजस्थान. जो जोधपुर है वो राजस्थान में आया है. नियर इट लाइट ए विलेज कॉल्ड खेजड़ी. ओके, वाई इज़ द विलेज नेम्ड खेजड़ी? इस विलेज का नाम खेजड़ी क्यों है? सो द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज मैनी खेजड़ी ट्रीज ग्रो देयर. खेजड़ी एक पेड़ का नाम है, ट्री का नाम है. तो कई सारे खेजड़ी ट्री राजस्थान में हुआ करते थे. ओके, द पीपल ऑफ द विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. और वहाँ के जो विलेज के लोग थे वो ट्रीज़ को और एनिमल्स को बहुत अच्छे से उनकी केयर करते थे. ओके, दे यूज टू से, उनका ये कहना था, इफ़ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव. अगर ट्रीज़ हैं तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, तो ही हम जी सकते हैं. नेक्स्ट, द पीपल ऑफ दिस विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ दिस प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. ओके, तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत अच्छे से केयर करते थे प्लांट्स की, एनिमल्स की. गोट्स, डियर्स, हैर्स एंड पिकॉक्स नेम्ड फियरलेसली देयर. वहाँ पे ये जो एनिमल्स थे वो बिना डरे घूमते थे, उन्हें कोई डर नहीं था. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम. वहाँ के लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रहती थी कि वो उनके बड़ों ने उन्हें क्या कहा था. दे यूज टू से, वो कहते थे अगर पेड़ हैं तो हम हैं. ओके, अगर ट्रीज़ हैं तो हम हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस. प्लांट और एनिमल हमारे बिना रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. बट हम ट्रीज़ के बिना नहीं रह सकते हैं. ओके, सी, प्लांट्स गिव fruits to eat. They give shade under which we can play or take rest. Plants keep the air fresh by giving us oxygen and absorbing carbon dioxide. Okay, so understood about plant? So here Amrita's story. Amrita एक छोटी सी गर्ल थी. She was living in village. Amrita would get up early every morning and greet her friends. ओके, वो जल्दी उठ जाती थी और अपने फ्रेंड्स से मिलती थी. उसके फ्रेंड्स कौन थे? ट्रीज़. शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. वो हर दिन एक नया ट्री चूज़ करती थी. ओके, एंड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर्स. और अपने हाथों से उस ट्री को पकड़ती थी और उससे बातें किया करती थी. ओके, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. और अमृता अपने फ्रेंड ट्री से कहती थी कि आप कितने स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो. यू केयर फॉर अस, आप लोग हमारी केयर भी करते हो. आई लव यू वेरी मच, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ. मेक मी ऑल्सो लाइक यू, मुझे भी आपके जैसा स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बना दो. तो ये सब अमृता अपने फ्रेंड ट्री से बोलती थी.
Like Amrita, other children also had their special trees. Okay, अमृता की तरह और भी चिल्ड्रंस के स्पेशल ट्रीज थे, स्पेशल फ्रेंड्स थे. They would play for hours in the shade of the tree. वो कई घंटों तक उस ट्री के छांव के नीचे खेला करते थे. Okay? Is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? ओके, आपके घर के साइड या फिर स्कूल के साइड या रोड साइड कोई ट्रीज़ हैं जो आपने देखे हो, कहीं प्लांटेड किए हुए हो. वाई वेयर दे प्लांटेड देयर, वो सब ट्रीज़ वहाँ प्लांटेड क्यों किए गए हैं. सो यू हैव टू गिव योर आंसर कि जितने भी आपके घर के साइड प्लांट किए गए हैं, दे वेयर प्लांटेड देयर टू गिव फ्रूट्स, शेड एंड टू कीप द एयर फ्रेश. ओके, जो आपको फ्रूट्स देते हैं, छाया देते हैं और एयर को फ्रेश रखते हैं. ठीक है, इस तरह के प्लांटेड हमें किए गए हैं, हमें स्कूल के पास, रोड साइड या फिर घर में. नेक्स्ट, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज. क्या अभी आपने देखा है कोई भी इस ट्रीज की केयर करता हो. हु डज दिस. ओके, कौन केयर करता है. गार्डनर्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ दिस ट्रीज एंड प्लांट्स. जो गार्डनर्स होते हैं बगीचे में, ओके, तो वो सब ट्रीज़ की और प्लांट्स की केयर करते हैं. ठीक है, जैसे वाटरिंग करना, ये सब. हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज. हु ईट्स दीज फ्रूट्स. क्या आपने कभी किसी ट्री पर फ्रूट्स देखा है और कौन खाता है. तो देयर आर मैंगो ट्रीज, गुआवा ट्रीज, चीकू ट्री. द पीपल हु टेक केयर ऑफ द ट्रीज एंड बर्ड्स ईट दोज फ्रूट्स. ओके, जो ट्री की केयर करता है और बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं. ट्रीज इन डेंजर. अब है कि ट्रीज को खतरा है. ठीक है, टाइम वेंट बाई. समय चला गया. ओके, वो टाइम निकल गया. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. अमृता बड़ी हो गई थी. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. ओके, वो एक दिन अपने ट्रीज फ्रेंड से मिली. ओके, जो ट्री था वहाँ मिलने गई. शी सो दैट देयर वेर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज. उसने देखा कि उसके गांव में कुछ अनजान लोग हैं. दे हैड एक्सेस विद दैम. उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी. दे सेड दैट द किंग हैड सेंड दैम टू कट ट्रीज फॉर वुड. उन्होंने कहा, स्ट्रेंजर्स ने कहा कि हमें राजा ने भेजा है ये ट्रीज को कट करने के लिए, लकड़ियों के लिए. ओके, सी, ये जो बिल्डिंग है ना, ये बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी. तो द वुड वॉज नीडेड फॉर द बिल्डिंग द किंग्स पैलेस. ओके, जो लकड़ियाँ हैं उसकी ज़रूरत क्यों थी. ये किंग्स के पैलेस को बनाने के लिए. ओके, अमृता वॉज शॉक्ड. अमृता बहुत शॉक्ड हो गई. ओके, शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेर अबाउट टू कट. और वो उस ट्री के पास चली गई जिसको वो आदमी काटने वाला था. She put her arms around the tree and hugged it tightly. और उसने अपनी आर्म्स को उस ट्री के चारों तरफ से पकड़ लिया और उसे टाइटली हग कर लिया, उसे छोड़ा नहीं. द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर. सब उस पर चिल्लाने लगे, उसे डांटने लगे, डराने लगे कि अमृता हट जाओ वरना हम तुम्हें भी काट देंगे. बट अमृता डिड नॉट लेट गो टू द ट्री. पर अमृता ने उस ट्री को नहीं छोड़ा. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. ओके, जो किंग्स के आदमी थे वो उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे. दे हैड टू कट द ट्री. उन्हें वो ट्री कट करना था. ऑन सीइंग दिस, अमृता's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. ओके, ये सब देखकर अमृता की बेटियाँ और काफ़ी विलेजर्स, ओल्ड एंड यंग, सब लोग आकर ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें हग कर लिया, उन्हें पकड़ लिया. ओके, क्योंकि ट्री बचाना ज़रूरी था. मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज. अमृता और उसकी बेटियों के साथ साथ काफ़ी लोगों ने अपनी जान दे दी ट्रीज को बचाने के लिए. When the king heard of this, जब राजा ने ये सब सुना, किंग ने ये सब सुना, he could not believe that people gave up their life for the trees. उसे यकीन नहीं हुआ, उसे विश्वास नहीं हुआ कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी है. He visited the village himself. वो खुद विलेज में गया और सबसे मिला. There he saw the deep feeling of the villagers towards trees and animals.
किंग ने देखा कि सारे विलेजर्स की डीप फीलिंग यानी एनिमल्स और ट्रीज को सारे विलेजर्स कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वहाँ जाकर राजा ने ये सब देखा. ओके, सो हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन. डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? क्या आपको याद है कि गांव वालों के वहाँ जो उनके बड़े थे उन्होंने क्या कहा था? योर फर्स्ट आंसर, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. ओके, सो जो विलेजर्स के एल्डर्स थे उन्होंने ये कहा था. योर सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? सो सेकंड आंसर, नो, वी कैन नॉट सर्वाइव इफ ट्रीज आर नॉट देयर. ओके, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अगर ट्री नहीं होंगे तो. नेक्स्ट, द विलेज इज प्रोटेक्टेड. ओके, द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली. जो गांव वाले थे उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देखकर, जो पेड़ों के लिए वो डेडिकेट थे, बहुत प्यार करते थे, ये सब किंग को मतलब राजा को बहुत अफेक्ट कर गई. ओके, ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया. फिर राजा ने यानी किंग ने ऑर्डर किया, ओके, तब से कि कोई भी ट्री नहीं कटेगा और कोई भी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा उस एरिया में. ये राजा ने ऑर्डर किया. इवन टुडे, बल्कि आज भी ऑलमोस्ट 300 ईयर पास्ट, 300 ईयर्स हो चुके हैं, बट द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोईज. अब वहाँ के एरिया के जो लोग हैं उनको बिश्नोईज कहा जाता है. ओके, बिकॉज कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि वो आज भी प्लांट्स और एनिमल्स की केयरिंग अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह करते हैं. जो बिश्नोईज होते हैं वहाँ पर, जो जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले, ओके, वहाँ के विलेज में जिसका नाम है खेजड़ी विलेज में रहने वाले जो विलेजर्स है बिश्नोईज, वो आज भी प्लांट्स और एनिमल्स की केयर अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह करते हैं. इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, जो डेजर्ट के बीचों बीच, ओके, द एरिया इज़ ग्रीन, वहाँ का एरिया ग्रीन है, मतलब खेजड़ी विलेज में. एंड एनिमल्स रोम अबाउट फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर, और जो एनिमल्स हैं बिना किसी डरे फ्रीली घूमते हैं, बिकॉज विलेजर्स ने उन्हें बहुत प्यार और फैमिली मेम्बर्स की तरह केयरिंग की है, दैट्स वाई. ओके, तो वहाँ पे एनिमल्स बिना डरे घूम सकते हैं. ओके, here in your textbook one activity is given and you have to write about any one tree. So I am writing here about one tree. Name of the tree, rose tree. Second question, does the tree have flowers? Which color? Yes, the tree has flowers, red, pink and many more beautiful colors. Third question, do the flowers remain on the tree throughout the year? जो flowers होते हैं वो पूरे year रहते हैं क्या? नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्रीज थ्रू आउट द ईयर. ओके, वो पूरे ईयर नहीं रहते हैं, उनका एक टाइम होता है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? किस मंथ में उनके लीव्स फॉल होते हैं, गिरते हैं? द लीव्स फॉल इन फॉल मंथ ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? राइट देयर नेम्स. ओके, क्या ट्री पर फ्रूट्स होते हैं और आपको उनके नेम लिखने हैं? यस, फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री. एग्जाम्पल मैंगो, बनाना एक्सेट्रा. ओके, सो दीज ट्रीज आर देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ डू द ट्रीज हैव फ्रूट्स? किस मंथ में ट्री पर फ्रूट्स होते हैं? तो मैंगोज ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च. जो मैंगो है वो मार्च मंथ में ग्रो होता है ट्री पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स? हाउ डू दे टेस्ट? यस, आई हैव ईटन दीज मैंगोज. इट टेस्ट इज वेरी स्वीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू पीपल हंट? लोग शिकार क्यों करते हैं एनिमल्स का? सो आंसर है फॉर फन एंड स्किन. ओके, अपने फन के लिए एंड उनकी जो एनिमल की स्किन होती है वो उसका यूज़ करने के लिए उनका शिकार करते हैं. There are rules against hunting of some animals. People can be punished for the hunting.
Why are such punishment imposed? To your answer, because animals are innocent, okay, and the punishment has been made to save animal. जो animals होते हैं बहुत innocent होते हैं, हम उनको क्यों मारें? So that's why punishment has been made. तो punishment होनी चाहिए animal को save करने के लिए, okay? So students, here talk to your grandparents and find out, okay? You have to write the answers by yourself, okay? This is homework, so do yourself. Next, Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and manna than he sees today. Can you tell the reason why their numbers have become less? सी जो एनिमल्स हैं वो क्यों अब कम हो गए हैं, ओके उनकी जो नंबरिंग है वो क्यों कम हो गई है? बिकॉज ऑफ हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ओके बिकॉज हंटिंग मीन्स जो शिकार करते हैं इनोसेंट एनिमल्स को मार देते हैं इसलिए, एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को कट कर देते हैं फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, सो दैट्स वाई द नंबर हैव बिकम लेस. जो एनिमल है उनके नंबर कम होते जा रहे हैं, एनिमल कम होते जा रहे हैं. Next, the khejari tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of tree can you see the most in your area? Name two such trees. Okay, khejari tree जो है वो most common tree था अमृता के village में. And आप बता सकते हो कि आपके एरिया में कौन सा common tree है जो आप mostly देखते हो. So, I have written two trees, mango tree and neem tree. Mango provide us shade. It has strong branches. It gives sweet fruits. Here neem tree. Neem is a very fast growing tree. It is a medicinal plant. Okay. At the last, khejari tree is found mainly in desert area. Okay, जो khejari tree है वो कहाँ found किया जा सकता है? Desert area में. It can grow without much water. ओके ये ग्रो हो सकता है विदाउट मच वाटर, कम वाटर में भी ये ग्रो हो सकता है. इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन. ओके इसकी जो पिलिंग होती है, इसकी जो छाल होती है किसके लिए काम आती है? मेडिसिन बनाने के. पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट. इट मीन्स बीन्स. लोग इसके बीन्स मतलब जो फ्रूट होते हैं वो भी खाते हैं और इसे कुक भी करते हैं. इट्स वुड इज़ सच that it will not be affected by insect. ओके इसकी जो वुड होती है वो इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं होती है. जो इंसेक्ट होते हैं वो इसके ट्री को नहीं खा सकते हैं. ओके एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी एंड चिल्ड्रन लाइक यू. ओके आपके जैसे जो चिल्ड्रन होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो खेजड़ी के लीव्स खाते हैं उस एरिया में. ओके एंड प्ले इन इट्स शेड, और उसके जो छाया में यानी इसके शेड में वो लोग खेलते भी हैं. आपके जैसे जो चिल्ड्रन होते हैं वो खेजड़ी ट्री के लीव्स खाते भी हैं और वहाँ खेलते भी हैं. सो लेट्स स्टार्ट MCQs. योर फर्स्ट क्वेश्चन, डैश वर अमृताज बेस्ट फ्रेंड्स. ओके तो कौन था अमृता का बेस्ट फ्रेंड स्टूडेंट्स? सो वी नो दैट ट्रीज वर अमृताज बेस्ट फ्रेंड्स. सेकेंड नंबर, चिल्ड्रन ऑफ खेजड़ी प्लेड. जो खेजड़ी के चिल्ड्रंस थे वो किसके साथ खेलते थे? ओके तो इन द शेड ऑफ द ट्रीज. ऑप्शन सी. थर्ड क्वेश्चन, द किंग वांटेड द ट्रीज टू बी कट बिकॉज. राजा जो था वो ट्रीज को कटवाना चाहता था. क्यों? बिकॉज द वुड वॉज नीडेड फॉर हिज पैलेस. ओके ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 4, द विलेजर्स प्रोटेक्टेड द ट्रीज फ्रॉम being cut by hugging the trees. Okay option number C. Question number 5, the most common tree that grew in Amrita's village was the dash tree. तो खेजड़ी tree. Okay option number B. So let's start true and false. Number 1, Amrita and her companions sacrificed their lives almost 300 years ago. ओके 300 ईयर्स पहले अमृता और उसके साथियों ने अपनी जान गंवा दी थी. तो दिस इज ट्रू. योर आंसर इज ट्रू. सेकेंड, द एल्डर्स ऑफ खेजड़ी विलेज सेड दैट
plants and animals can live without humans? Yes, वहाँ के बड़ों ने कहा था कि plants and animals बिना humans मतलब हमारे बिना रह सकते हैं. So this is true. Third number, the king stopped the tree cutting when he came to know of the strong feelings of the villagers. जब राजा ने स्टॉप करा दिया बिकॉज क्योंकि वहाँ का ट्री जो कट रहा था राजा ने स्टॉप करा दिया जब उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पता चली विलेजर्स की. तो दिस इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4, टुडे खेजड़ी विलेज इज अगेन लाइक ए डेजर्ट. क्या आज भी जो विलेज है खेजड़ी वो डेजर्ट की तरह है? नो, फॉल्स. 5 नंबर, लीव्स ऑफ द खेजड़ी ट्री आर ईटन बाई एनिमल्स. यस, दिस इज ट्रू. वहाँ के जो लीव्स हैं वो खेजड़ी ट्री के वो एनिमल्स खाते हैं. यस. 6, द स्टोरी ऑफ अमृता इज ए ट्रू स्टोरी. यस, दिस इज ए ट्रू स्टोरी. अमृता की जो स्टोरी है वो ट्रू है. दैट इज योर आंसर, ट्रू. नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. सो 1 नंबर, द बिश्नोई पीपल इवन टुडे प्रोटेक्ट. आज भी बिश्नोई के जो लोग हैं इट मीन्स खेजड़ी विलेज में जो बिश्नोई रहते हैं वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स को. योर फर्स्ट आंसर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेकेंड, द किंग लर्न अबाउट द विलेजर्स रेस्पेक्ट फॉर डैश व्हेन ही विजिटेड द विलेज. जब राजा विलेज में गया तो विलेजर्स से क्या चीज़ सीखी? किसकी रेस्पेक्ट करना सीखा? रेस्पेक्ट फॉर ट्रीज. थर्ड नंबर, इफ़ वी विजिट खेजड़ी विलेज टुडे. अगर आज भी हम खेजड़ी विलेज में जाते हैं वी विल फाइंड दैट द एनिमल्स देयर मूव अराउंड विदाउट फियर. वहाँ की जो एनिमल्स है बिना डर के घूमते हैं. ओके, उन्हें कोई डर नहीं है लोगों से, वो बिना किसी डर के घूमते हैं. नंबर 4, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड अमृता वांटेड द ट्रीज टू गिव हर देयर डैश. ओके, जब अमृता छोटी थी तब वो ट्रीज को क्या देती थी? ऑलवेज. तो वो ट्रीज को स्ट्रेंथ देती थी बिकॉज अमृता ट्रीज को फ्रेंड मानती थी, इसीलिए वो सब ट्रीज को स्ट्रेंथ देती थी. ओके, सो योर आंसर is strength. Okay students, so you have to write this filling the blanks and true false in your fair notebook also properly. Okay, next, very short answer. Okay, here question number 1, what do the बिश्नोई people believe? Okay, जो बिश्नोई people थे खेजड़ी विलेज में जो रहते थे वो किस पर विश्वास करते थे, किस पर बिलीव करते थे? बिश्नोइज बिलीव दैट इफ ट्रीज देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव. अगर पेड़ हैं तो ही हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन. सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन अमृता ग्रू अप व्हाई डिड स्ट्रेंजर्स विजिट हर विलेज. जब अमृता बड़ी हुई तो जो स्ट्रेंजर्स थे, अजनबी थे, उन्होंने विलेज में क्यों विजिट किया? तो आंसर इज स्ट्रेंजर्स came to the village to cut the trees on the king's order to build king's palace. Okay, strangers village में trees कट करने आए थे क्योंकि king ने ऑर्डर किया था, king को अपना पैलेस बनवाना था इसलिए. क्वेश्चन नंबर 3, when Amrita hugged a tree what did the woodcutters do before killing her. अमृता ने जब ट्री को पकड़ लिया, हग कर लिया, तो what did the woodcutters डू बिफोर किलिंग हर. अमृता को मारने से पहले उन्होंने क्या किया? तो द वुड कटर शाउटेड, वुड कटर चिल्लाया अमृता पर एंड थ्रेटेंड हर टू मूव अवे फ्रॉम द ट्रीज, और उसे डराया कि ट्रीज से दूर हट जाओ. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द किंग नॉट बिलीव. किंग को किस पर विश्वास नहीं हुआ? द किंग कुड नॉट बिलीव दैट द विलेजर्स सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द ट्रीज. उसे इस चीज़ पर विश्वास नहीं हुआ कि किंग ने इस चीज़ पर विश्वास नहीं किया कि विलेजर्स ने सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी जान दे दी ट्रीज को बचाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, इन विच एरियाज इज़ द खेजड़ी ट्री यूजुअली फाउंड. खेजड़ी ट्री आर फाउंड इन खेजड़ी विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान स्टेट. तो खेजड़ी ट्री कहाँ पर आया है? जोधपुर राजस्थान में. ओके, so here short answer. Question number 1, how did the day
of small Amrita usually begin? जो स्मॉल अमृता थी वो अपना डे कैसे स्टार्ट करती थी, कैसे बिगिन करती थी? सो हियर योर आंसर, अमृता स्टार्टेड हर डे बाय मीटिंग एंड ग्रीटिंग हर ट्री फ्रेंड्स. ओके, अमृता जो थी वो अपने फ्रेंड ट्री से मिलके और उसे वेलकम करके अपना डे स्टार्ट करती थी. क्वेश्चन नंबर 2. List 2 reasons due to which the khejuri tree can survive in very poor conditions. ओके, आपको 2 रीजंस बताने हैं कि जो खेजड़ी ट्री है उसे सर्वाइव करने के लिए, पुअर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. तो खेजड़ी ट्रीज कैन ग्रो इवन विदाउट मच वाटर. जो खेजड़ी ट्री है वो कम पानी में ग्रो हो सकता है. एंड देयर रूट्स कैन गोज डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब अंडरग्राउंड वाटर. और उसके जो रूट्स कैन हैं वो सॉइल में डीपली जाके वो अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वाज द विलेज फाइनली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज. ओके, जो विलेज में ट्री था, ओके, तो उन्हें कटिंग करने से कैसे बचाया गया, ओके, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट किया गया कटिंग ऑफ ट्रीज को. सो हियर योर आंसर, व्हेन द किंग सॉ द विलेजर्स सेक्रीफाइस. जब राजा ने देखा कि विलेजर्स का सेक्रीफाइस ट्री के लिए, कि ट्री को बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं, सो ही वॉज ग्रेटली अफेक्टेड. ओके, उससे बहुत अफेक्ट हुआ, उसे बहुत फील हुआ. सो ही ऑर्डर्ड नॉट टू कट द ट्रीज फ्रॉम देन ऑन. उसने कहा कि आज से कोई ट्री कट नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड द किंग्स मैन किल द विलेजर्स ऑफ खेजड़ी. ओके, जो किंग्स के यानी राजा के जो मैन थे, आदमी थे, जिन्हें उसने ऑर्डर किया था, उन्होंने विलेजर्स क्यों मारा, मतलब खेजड़ी विलेजर्स को क्यों मारा. योर आंसर, विलेजर्स हैड हग्ड द ट्रीज टू सेव देम. ओके, जो विलेजर्स थे उन्होंने ट्रीज को हग कर लिया, पकड़ लिया उसे बचाने के लिए. बट किंग्स मैन हैड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर. पर राजा के आदमियों को राजा का ऑर्डर फॉलो करना था. सो द वुड कटर्स किल्ड द विलेजर्स ऑफ खेजड़ी. इसलिए गांव वालों को मार दिया गया. ओके.